Okay, clear. Then now, like this, we have to do. See what I did here. I have created one repository. I have fetched the created repository. I have updated one repository. I have fetched the updated repository. I have deleted one repository. I have fetched the deleted repository. So whatever I'm creating, updating, deleting, I'm fetching whether it is working or not. That's what. That's why we are using get operation. Okay, done. So in get operation also we did post condition. Now what is precondition? And see, one most relatable issue that all we are facing as of now. If I have created one repository, okay, this Koshagra repository is created. If I click on send button, then we will get 422. Again we have to come here and we have to click on send button, then only we will be able to create the same repository. Okay, again if I want to click on send button, again 422, again I have to delete it, then again I will be able to create it. Okay, like this. So again here we are doing manuation, okay, not automation, like manually we are doing things. So how to do automation here? There is one problem where whenever there is one problem, then there will be a solution. So what is the solution for this? See, what is the solution for this? Now it is 201 created, but again if I click on send button, it will throw 422. So what is the solution for this? We can solve it in precondition. What is precondition? Condition, those condition which are executed or which are applied before executing the test cases. Post condition, what are post condition? Conditions which will be applied uh, after receiving the response from the server. And what are the what is precondition? Before sending the request, whatever condition which needs to be applied, we call it as precondition. Okay, before sending the request, whatever the condition that needs to be applied, we call it as precondition. Okay, as I told in my scriptless test automation class as well, that actual script, okay, before running the actual script, we have to set some precondition to achieve till there, okay, to be there. Okay, so here also precondition, whenever like before executing the real script, the condition that needs to be executed, we call it as precondition. Understanding, theoretically understanding. Okay, now we will do it in practical. Okay, so every time, see, if there is one solution for this. If this 422 coming, okay, then we will delete the repository, then 204 no content. Okay, if I again send click on send button, it will create. If I again click on send button, it will give 422. So what if we use uh, Kushagra one, then what it will throw? Oh my god, maybe I have created this repository also. Okay, like suppose if I use Kushagra 5, then save send, then it will create. Okay, and again if I click on send button, it will 422. Okay, 55, save send, then again one repository will get created. If 555, then again one repository will created. So this will be one solution, that if we use alphanumeric value, okay, alphanumeric value, name with numbers, then every time we will be able to create one repository. Now I don't want to, like, basically if I do this, I will not get, see, your repo name Kushagraphy. Every time we will get this assertion error. So because obviously again if we are doing this thing again, we have to go to repo in environments, we have to go to repository, and we have to edit the uh, repo name. So then only it will reflect here. Okay, so many things we have to do. So what will be the solution for this? Okay, please listen carefully. It is a little bit complex to understand, but if you are listening it carefully, then you will understand. Okay, so precondition here in Postman, precondition is also known as pre-request script. Means the request which needs to be sent, the pre-request scripts are written in JavaScript and are run before the request is sent.
before sending the request to server, the condition which needs to be applied, or the scripts which needs to be run, we call it as pre-request script or precondition. Are you getting it? Now, pre-request script. Now, we have to like here we have to write some JavaScript codes. How many of you are able to write JavaScript codes here? Like, how many of you are know about this language, JavaScript? Tell me. No. Okay. No with sad emoji. Okay. Done. So, just because we are not able to write, okay, we don't, suppose we don't have idea how to write a JavaScript for generating one random number. Okay, generating one random number, basically we are generating one random number which consists of alphanumeric value. ओके, उस रैंडम नंबर में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, नाम है प्लस नंबर है, तो अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमको कोई जावा स्क्रिप्ट में कोई रैंडम नंबर लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे हमको नहीं आता। ठीक है, इफ वी आर नॉट हैविंग आइडिया अबाउट इट हाउ टू राइट, सो हाउ टू डू इट, सो नाउ वी विल यूज Google. That's why Google is there, Google auntie is there. Okay, so we will ask to Google auntie that please generate javascript javascript uh, to, generate JavaScript for generating random numbers. Okay, Google Auntie, we will use this Google Auntie, and we will ask to Google Auntie that please give us our Java, like please give us a random number which is written in JavaScript. Okay, so I have just typed this JavaScript for generating random numbers. Then we will click on this JavaScript math random method. Okay, then we have to scroll a little, and at the end we will find this, that let x is equal to, and all this, it is written in JavaScript language. Then simply we have to copy it, and we have to come and we have to paste it over here in pre-request script. We have to paste it here. Okay, मैंने लास्ट वाला क्यों चूज किया है इसका बताऊंगा कि ये रैंडम होल नंबर बिटवीन 1 and 100। ठीक है, कि सपोज आपको अगर जैसे बेसिकली आप बहुत बार रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, आपने कोई नाम लिया, जैसे आपने नाम कुछ भी, आपने नाम ले लिया XYZ, आपने नाम ले लिया पोस्ट मेलॉन। ठीक है, अब पोस्ट मेलॉन, और उसको आप एक ऐसा जावास्क्रिप्ट उसके लिए लिखे हो कि वो 1 से 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर बताएगा। तो पोस्ट मेलॉन कितने बार ही रिपीट होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 10 बार। ठीक है, लेकिन अगर हम ये 100 बार सेलेक्ट कर लेते हैं तो 100 तक, मतलब 99 100 तक वो वैल्यू लगातार जनरेट होगी। अभी आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, जब मैं करूंगा ये चीज तब आपको एकदम क्लियर होगा। ठीक है, बट till now what we have done, just because we don't know how to write a method for generating random number in JavaScript language, so we have taken help from Google Auntie, and we have just written that Java, like generate JavaScript number or JavaScript for generating random numbers. Okay, we have just written it in Google, and we have clicked on this JavaScript math random link. Okay, then we have to scroll a little, and we have to just copy and paste it over here. Where? Here in pre-request script. Now next what we have to do, now next what we have to do, if you are little bit good in maths, then you know the variable of you know the concept of variables, like variables तो यहाँ पे भी हमको पता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या काम करेंगे कि यहाँ पे एक स्निपेट्स यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं स्निपेट्स में एक एनवायरमेंट वेरिएबल, जो हम यहाँ पे जाके एनवायरमेंट में वेरिएबल सेट करते हैं, वो डायरेक्टली हम प्री कंडीशन में भी, ठीक है, या फिर पोस्ट कंडीशन में भी कोई वेरिएबल सेट भी कर सकते हैं और उस वेरिएबल को कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर मेरे को यहाँ पे कोई वेरिएबल सेट करना है, जैसे हम बेसिकली हमको कोई वेरिएबल सेट करना पड़ता है, हम एनवायरमेंट में जाते हैं, टेस्ट एनवायरमेंट में जाते हैं, और फिर वहां पे जाके वेरिएबल सेट करते हैं। ठीक है, वहां पे जाके वेरिएबल सेट करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अगर हमको लेकिन हम
प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट या फिर पोस्ट कंडीशन में भी कर सकते हैं, एक वेरिएबल सेट कर सकते हैं, क्योंकि स्निपेट्स है वहां पे एक जो वही एक कोड जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा गया है एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए। ठीक है, तो बस मैं ये स्निपेट्स का यूज करूंगा, सेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक किया ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है वेरिएबल की और वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल की बेसिकली देखो यहाँ पे ये वेरिएबल की होती है, ये हो गई वेरिएबल की, और जो वैल्यू दे रहे हैं हम ये हो गई वैल्यू। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी वेरिएबल की हो गई और वेरिएबल वैल्यू। तो अब मैं क्या करूंगा, वेरिएबल की दे दूंगा रैंडम नंबर, प्लीज फोकस हियर। ठीक है, रैंडम नंबर, मैंने रैंडम नंबर एक वेरिएबल की दे दिया और उसको एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में स्टोर कर दिया। ठीक है, ये एक मेरी वैल्यू है जो एक्स वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये एक वैल्यू है जो एक वेरिएबल में स्टोर है, ये एक टाइप का एक वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये है, ये एक वेरिएबल में ये जो वैल्यू है ये वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट में एक मेथड लिखी गई है ताकि कंटिन्यूअसली अलग अलग नंबर को जनरेट कर सके, अलग अलग रैंडम नंबर को जनरेट कर सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल की का नाम दे दिया हूँ रैंडम नंबर, और वेरिएबल वैल्यू दे दूंगा, सपोज मैं दिया कुशाग्र। ठीक है, और प्लस प्लस कुशाग्र एक स्ट्रिंग है इसलिए डबल क्विट्स में प्लस प्लस ये जो वैल्यू है वो किस में स्टोर है, एक ये एक्स वेरिएबल में, तो मैं इस एक्स वेरिएबल को कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस न्यूमेरिक, ये अल्फा कुशाग्र। ठीक है, और जो भी न्यूमेरिक हर बार वो जो रैंडम नंबर है वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी बॉडी में जाऊंगा। ठीक है, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में मैंने अभी तक क्या किया, बस मैंने कॉपी पेस्ट किया एक रैंडम मेथड जो कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखी गई है, बस मैंने उसको कॉपी किया, अपने प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर मैं स्निपेट्स के हेल्प से एक वेरिएबल यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो बस मैंने एक ये सेलेक्ट किया, ये वाला स्निपेट, सेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल, और फिर इसके बाद वेरिएबल की दे दिया यहाँ पे रैंडम नंबर, और उसकी वैल्यू दे दी मैंने कुशाग्र प्लस एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, ये पूरी वैल्यू जो हेल्प करेगी अलग अलग रैंडम नंबर जनरेट करने में। ठीक है, अलग अलग रैंडम नंबर जनरेट करने में। ठीक है, देन I will come to body. Now, what I will do, what I will do, see, बस मैं इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको इरेज किया, और जो मैंने रैंडम नंबर, जो यहाँ पे मैंने रैंडम नंबर का एक वेरिएबल, ये देखो बेसिकली मैंने एक वेरिएबल बनाया ना। अभी आप यहाँ एनवायरमेंट्स में जाओगे, टेस्ट एनवायरमेंट में जाओगे, तो ये देखो अभी आएगा, एक सेकेंड, जैसे मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली मैंने एक वेरिएबल बनाया है ना प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में, समझ में आ रहा है, एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू दे दी है मैंने कुशाग्र प्लस एक्स। एक्स क्या है, ये पूरी वैल्यू जो कि मैंने गूगल से उठाई थी। ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है अलग अलग रैंडम नंबर चेंज करने के लिए। ठीक है, तो बस बस यही रैंडम नंबर को मैं अपने नेम पे आके दे दूंगा। ठीक है, तो मैं जैसे ही ये रैंडम नंबर देता हूँ, ठीक है, रैंडम नंबर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, एकदम करेक्ट देना है जो भी यहाँ पे मैंने फिल किया था, देखो कैपिटल आर कैपिटल एन रैंडम नंबर। ओके, ठीक है, मैंने दिया। अब मैं अगर सेव और सेंड करता हूँ तो मुझे मिलेगा एक स्टेटस कोड जो कि है 400 बैड रिक्वेस्ट, मतलब कि बॉडीज के साथ कुछ आपने गलत किया है, कुछ बॉडी में कुछ एरर है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को इसको डबल क्विट्स में लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटाया। ठीक है, अब मैं इसको डबल क्विट में लिख दिया। अब अगर मैं सेव करता हूं और सेंड करता हूं तो आप देखोगे आ जाएगा 201 क्रिएटेड। अब मैं कितने बार भी सेंड करूं क्या आएगा, 201 क्रिएटेड, 201 क्रिएटेड। अब यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे एनवायरमेंट, नो एनवायरमेंट था, मैंने टेस्ट एनवायरमेंट सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे एक रैंडम नंबर की वैल्यू जनरेट हो गई है। ठीक है, अब ये देखो, ये मैं रिक्वेस्ट सेंड किया, अब यहाँ देखो वैल्यू चेंज होगी, 63 है, कुशाग्र 6 हो गई। ठीक है, फिर सेंड किया मैंने, फिर अभी 6 है, अभी 84 हो गई। ठीक है, फिर सेंड किया मैंने, अभी 84 है, अब 30 हो गई। समझ में आ रहा है, तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने रैंडम नंबर एक
जनरेट किया। ठीक है, जस्ट बिकॉज मेरे को जावा स्क्रिप्ट नहीं लिखते आता है, किसी भी कोई भी जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में कोई भी रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं वो लिखते नहीं आता है, तो मैंने गूगल आंटी की हेल्प ली। गूगल आंटी से पूछा कि कैसे जनरेट करूं, तो उन्होंने मेरे को सोल्यूशन बताया कि ये लो बेटे, ये एक बेसिकली जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ रैंडम नंबर है, आप इसको यूज करो। तो मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और फिर लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर मैं क्या किया, एक एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिया। क्यों? अब देखो बेसिकली एनवायरमेंट वेरिएबल कुछ नहीं है, एनवायरमेंट्स में क्रिएट हो गया होगा एक और। ये देखो रैंडम नंबर, क्या कि मैंने यहाँ टेस्ट एनवायरमेंट में कुछ किया है? नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आके कोई भी वैल्यू या फिर की नहीं दी हुआ है। ठीक है, बस मैंने वो चीज़ अपने स्क्रिप्ट में किया था। मैंने वो चीज़ यहाँ प्री रिक्वेस्ट प्री कंडीशन में वो मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल सेट किया, तो ऑटोमेटिकली वो एनवायरमेंट भी हो गया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एनवायरमेंट की क्या दे दी है, हम एनवायरमेंट की दे दी है रैंडम नंबर, और वैल्यू क्या दे दी है, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा क्या ले लिया मैंने, कोशाग, और न्यूमेरिक क्या हो गई, ये मेरी पूरी रैंडम नंबर जो कि एक वेरिएबल में स्टोर है एक्स, तो मैं उस एक्स वेरिएबल को कॉल कर लिया। ठीक है, तो अब बस ये पूरा सारा कुछ मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। ये हर बार ये वैल्यू कुशाग्र प्लस कुछ एक्स, एक्स मतलब कोई रैंडम नंबर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे रैंडम नंबर आ रहा है जो कि एक वेरिएबल में स्टोर है रैंडम नंबर। ठीक है, तो मैं उसी रैंडम नंबर को अपने बॉडी में कॉल किया। ठीक है, जस्ट बिकॉज वहां पे डबल क्विट्स नहीं था, तो 400 बैड रिक्वेस्ट आया, मतलब कुछ बॉडी के साथ गलत है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको डबल क्विट्स में लिखा, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, तो फिर जब भी मैं आप सेंड करूंगा तो हमेशा 201 क्रिएटेड आएगा, कभी भी 420 नहीं, 422 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक रैंडम नंबर इसका जनरेट किया है। गॉट इट गाइस? सर में आया? इज इट क्लियर? पक्का? can I cover one more topic, one more small topic? Is it clear? No, it is easy. Kindly again repeat this. Okay, I will repeat this. ठीक है, चलो वापस से रिपीट करते हैं। फर्स्ट वी वांट टू डू इट। ओके, यू कैन, पता नहीं है कि रैंडम नंबर जनरेट करना हो तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट में कैसे उसको लिखें, तो हमने गूगल आंटी की हेल्प ली। उसमें बस हमने पूछा जावा स्क्रिप्ट फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर, फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर। ठीक है, पहला लिंक पे मैंने क्लिक किया, लास्ट पे गया, और ये वाले पूरे मेथड को एक्स के साथ कॉपी किया और अपने स्क्रिप्ट में अपने प्री कंडीशन में आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक पूरी वैल्यू दी हुई है जो वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये किस चीज के लिए है कि 100 तक कोई भी रैंडम नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहेगा। जितने बार रिक्वेस्ट भेजोगे उतने बार कोई रैंडम नंबर जनरेट होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक स्क्रिप्ट लिखी है। ठीक है, जिसमें हम बता सकते हैं कि हम 100 तक, लाइक कुशाग्र वन, समटाइम कुशाग्र 1 2 3 4 5 से लेके पूरा 99 100 तक रैंडम नंबर हर बार अलग देगा। ठीक है, अगर 100 से ज्यादा चाहिए तो इसको 1000 कर दो। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो हमने बस ये एक मेथड लिख दी, क्योंकि हमको नहीं आती तो हमने गूगल से हेल्प लेके ये चीज कर दिया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे एक एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। मेरे को एक यहाँ पे वेरिएबल सेट करना है ताकि इस वैल्यू को मैं स्टोर कर सकूं, जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड है एक्स में। बेसिकली मैं इसको कॉल एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर सकूं, और फिर उसको उस वेरिएबल को मैं अपने ये बॉडी में कॉल कर सकूं। ठीक है, तो वेरिएबल सेट करने के लिए एक स्निपेट्स है, set an environment variable, set an environment variable. So I will click on this set an environment variable, and then I will choose variable key. In variable key, what I have to fill, I have to fill random number। जैसे हम यहाँ पे environment में ये सब दिए थे कि ये बेसिकली वेरिएबल नेम ओनर है, वेरिएबल नेम रेपो है, वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल नेम या वेरिएबल की जो है वो है रैंडम नंबर। हमने बेसिकली, आप कोई भी नाम दे दो ना, रेपो नंबर दे दो, ठीक है, लेकिन बेसिकली हम रैंडम नंबर के लिए जनरेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रैंडम नंबर नाम दिया। ठीक है, इट डजेंट मैटर, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो आप, डजेंट मैटर, यहाँ पे नाम दे दो आप रोनाल्डो। ठीक है, इट विल वर्क। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो आप, यहाँ पे रोनाल्डो दे दो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रोनाल्डो की, कुछ भी, जैसे कुशाग्र, आपको कुशाग्र नाम से नहीं करना है,
आपको करना है क्या नाम दे दूं यार, मनोज, ठीक है, मनोज के नाम से। प्लस आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, तो उसके लिए जो जो रैंडम नंबर, कोई रैंडम नंबर इसके लिए मेथड लिखा हुआ है, तो ये मेथड लिखी हुई है जो कि एक वेरिएबल में स्टोर है एक्स, तो इस एक्स को मैंने कॉल कर लिया, ठीक है, प्लस एक्स, बेसिकली इस एक्स को मैंने कॉल कर लिया। अब मैं बॉडी में गया, तो यहाँ पे किस नाम का बना है वेरिएबल की, रोनाल्डो नाम का, तो मैं बस गया बॉडी में और यहाँ पे मैं लिख दिया रोनाल्डो, ठीक है। अब ये 400 बैड रिक्वेस्ट देगा, क्योंकि 400 बैड रिक्वेस्ट देगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, इसको डबल क्विट्स में होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको डबल क्विट्स में कर दिया। फिर सेव करके सेंड किया, तो जितनी बार अब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा 201 क्रिएटेड ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने टेस्ट एनवायरनमेंट खरा सेलेक्ट किया है तो सेंड करते जाओ। देखो मनोज 9 है, मनोज 71, फिर सेंड करो, मनोज 17, ठीक है, फिर सेंड करो, मनोज 74, ठीक है। लेकिन जो हमारा पर्पस है ये चीज करने का, वो रैंडम नंबर एक जनरेट करने का पर्पस है, इसलिए मैंने यहाँ पे रैंडम नंबर सेलेक्ट लिखा। रोनाल्डो नहीं लिखेंगे, रोनाल्डो क्या पर्पस है इसका, नहीं ना, रैंडम नंबर पर्पस है, इसलिए रैंडम नंबर यहाँ पे मैंने नाम लिखा। और यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, ज्लाटन दे दो, कुछ भी क्या अरिजीत सिंह दे दूं, क्या दे दूं, अनूप जैन, अनूप लिख दिया, ठीक है, डन। बॉडी, अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज वहाँ पे क्या सेलेक्टेड है, रैंडम नंबर, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा, अरे यार, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा रोनाल्डो है क्या, रैंडम नंबर, मेरे को रैंडम नंबर दे दिया। अब मैं सेव करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो भी एक ही रिजल्ट आएगा जो कि है 201 क्रिएटेड। और ये देखो, पहले मनोज था, ये देखो एक रोनाल्डो नाम का रैंडम नंबर, एक रोनाल्डो नाम का मैंने वेरिएबल की था, की किया था। अब दूसरा वेरिएबल की बन गया रैंडम नंबर का, रैंडम नंबर में सारा स्टोर होते जा रहा है। सर में आई बात। ये देखो आप एनवायरमेंट पे भी देखोगे आके, ये एक बेसिकली एक क्विक व्यू है, ठीक है, यहाँ से क्विक लुक होता है, एनवायरमेंट क्विक लुक, ठीक है। ये आपको अगर एनवायरमेंट यहीं से देखना है, बेसिकली हमको एनवायरमेंट देखना है तो हमको पूरा एनवायरमेंट में गए, फिर टेस्ट एनवायरमेंट में गए, फिर ये सारा खुलेगा। लेकिन अगर एक क्विक व्यू देखना है एनवायरमेंट का, तो हम डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल क्रिएट हुआ, क्या हुआ, वैल्यू क्या चेंज हुई, ठीक है। ये देखो, एक रोनाल्डो नाम का की बना और रैंडम नंबर का। अब सन में आया, नाउ यू गॉट इट गाइस, टेल मी, गॉट इट, गॉट इट जितेंद्र, गॉट इट, ओके, गॉट इट नो, एवरीवन, पक्का। Yes, sir. कैन यू मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, small topic, I will just want to cover one small topic which is related to this, which is totally related to this, ठीक है। देखो क्या है, स्मॉल टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कि यहाँ पे आप देखोगे प्री कंडीशन हमने सीख लिया कैसे हम प्री कंडीशन डालेंगे, ठीक है, और पोस्ट कंडीशन भी हमने सीख लिया कैसे डालेंगे। लेकिन आपने एक चीज यहाँ पे चीज नोटिस की होगी कि रैंडम नंबर तो जनरेट हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, लेकिन टेस्ट रिजल्ट में हमेशा एक एरर आएगा, कभी ये पास नहीं होगा। चलो रेस्पॉन्स टाइम को तो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये इंटरनेट कनेक्शन की वजह से है, लेकिन ये योर रेपो नेम, ठीक है, कि रेपो नेम अब हमेशा, क्योंकि वो रेपो, यहाँ पे रेपो नेम क्या है, यहाँ पे हमने रेपो नेम दिया है, यहाँ पे हमने रेपो नेम दिया है कुशाग्र, ठीक है, यहाँ पे हमने रेपो नेम दिया है कुशाग्र, तो उसके हिसाब से ये बता रहा है कि जो अनूप 92 है, और कभी भी हम करेंगे आज अभी अनूप 92 है, अब क्या हो जाएगा, ये देखो अनूप 5 हो गया, अब क्या हो जाएगा अनूप 46, फिर करो, फिर ये चेंज होते रहेगा, ये कभी कुशाग्र के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि रैंडम नंबर हमने डाला है, हर बार ये चेंज होते रहेगा। तो इसको हम पास कैसे करें, ये हमेशा फेल होता रहेगा, तो इसके लिए पास कैसे करें, तो ठीक है, इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। टेस्ट में जाएंगे, बेसिकली हम पोस्ट कंडीशन में जाएंगे, वहां पे हम देखेंगे कि कहाँ पे योर ओनर नेम, ये योर ओनर नेम बेसिकली ये रेपो नेम कहाँ है, ये है योर रेपो नेम, ठीक है, ये नेम है, इसकी वैल्यू कुशाग्र है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने वेरिएबल सेट किया था प्री कंडीशन में, अब उसको हम
गेट कर लेंगे, मतलब हम उसको यहाँ पे बुला लेंगे, यहाँ पे हम उसको कॉल कर लेंगे। जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल सेट किया था उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो अगर किसी वेरिएबल को कॉल करना है या फिर बुलाना है तो यहाँ पे भी एक स्निपेट्स है, गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल। तो ठीक है, फिर ये जस्ट रेपोनेम के ऊपर मैं एक एनवायरमेंट वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे सेट किया था मैं उसको गेट करूंगा, मतलब मैं उसको बुलाऊंगा। तो सिंपली मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल की डालनी है। वेरिएबल की क्या है हमारी, रैंडम नंबर, करेक्ट नो। वेरिएबल की देखो यहाँ पे रैंडम नंबर डाली है ना, तो बस ये वेरिएबल की का नाम दे देंगे रैंडम नंबर, रैंडम नंबर। और ये पूरे को भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये पूरे को एक, ये पूरे चीज को, ये जो वेरिएबल है, ये जो वैल्यू है पूरी, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। बेसिकली हमारा पर्पस है रेपोनेम में स्टोर करना, इसलिए मैंने नाम दे दिया रेपोनेम। अब ये रेपोनेम इज इक्वल टू ये पूरी इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, नेम इज इक्वल टू रेपोनेम, रेपोनेम। लेकिन यहाँ पे रेपोनेम कोई स्ट्रिंग नहीं है, प्रॉपर एक वेरिएबल है, इसलिए मैं इसको यहाँ से डबल क्विट्स हटा दिया। अब सेव करके मैं अगर सेंड करता हूँ, ठीक है, सेव करके यहाँ पे अगर मैं सेंड करता हूँ तो ये पास आएगा। ठीक है, वापस से रिपीट करता हूँ, समझ में आ रहा कि मैंने क्या किया, सेव, विल रिपीट अगेन। मैं पोस्ट कंडीशन में आया। ठीक है, पोस्ट कंडीशन में मैं आके क्या करूंगा कि जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे सेट किया था, जो वेरिएबल बेसिकली मैंने यहाँ पे प्रॉपर सेट किया था एक, अब उसको मेरे को कॉल करना है। ठीक है, मेरे को उसको अपने पोस्ट कंडीशन में कॉल करना है। ठीक है, तो मैं पोस्ट कंडीशन पे गया, यहाँ पे एक स्निपेट है, गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल, कि जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसको मेरे को बुलाना है। तो मैं सेलेक्ट किया गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल की डाल दो। वेरिएबल की, किस वेरिएबल को बुलाना है, रैंडम नंबर को बुलाना है, रैंडम नंबर का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे वेरिएबल की है, जैसे रेपो है, टोकन है, कितने सारे, देखो ये सब वेरिएबल ही है ना, ओनर है, रेपो है, रोनाल्डो है, रैंडम नंबर है। बट मेरे को रैंडम नंबर को बुलाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया रैंडम नंबर, वेरिएबल की मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया रैंडम नंबर। और फिर इसको, ये पूरे वैल्यू को भी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उस वेरिएबल का नाम दे दिया रेपो नेम। बेसिकली क्यों दिया, क्योंकि हम यहाँ पे रेपो नेम के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेपो नेम, ठीक है, रेपो नेम, जो वेरिएबल यहाँ पे मैंने सेट किया है उसको मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, कॉल कर दिया। फिर देखो अगर मैं सेंड करूंगा तो मैं कितने बार भी सेंड करूं, हमेशा ये चीज रेपो नेम हमेशा पास रहेगी। ठीक है, वहां पे मैंने एक वेरिएबल सेट किया था, बस मैंने इसको वेरिएबल को बुलाया, कभी भी अब ये फेल नहीं होगा, क्योंकि रैंडम नंबर को भी हमने एक वेरिएबल में कैद कर लिया है। ठीक है, अब जब भी होगा तो वो इस यहाँ पे हम रेपो नेम डालेंगे तो वो रैंडम नंबर जो भी होगा वो कॉल होते जाएगा। समझ में आया गाइस, गॉट इट? Do we have to remember all the snippet conditions? Not all the, but what are the, what are the snippets which are needed side, like status code name has a string, status code is 200, okay, JSON value check, okay, get a, how to get an environment variable, how to set an environment variable, okay, these snippets we have to remember. Okay, but the concept, have you understood, or do you want me to repeat again? Tell me. Understood? No, sir, got it. Okay. Concept is totally clear. First, we try it today. Yeah, obviously, please try it. Otherwise, you will forget. Okay. And this, just because this uh, concept is little bit tricky and it is little bit complex. So what I did, I have recorded one video for you guys. Okay. So I will share it in WhatsApp group. If you are facing any issue, okay, just go through that video. Okay, for this session only, for like for today's session only, I had recorded one video, so I will give it in a WhatsApp group. I will upload it in now after this session. So don't follow that video. Basically, first try by yourself. If you are having any doubt, just because concept should be clear. If concept is clear, then okay, follow the process. If you are facing any difficulty, then take some help
ऑफ दैट वीडियो। ओके, तो फिर वीडियो की हेल्प लेनी है, ठीक है। बट अंडरस्टूड, अंडरस्टूड गाइस, और डू यू वांट मी टू रिपीट अगेन और समथिंग? ओके, yeah, sure, sure, Pushkar. I will always be there for you, for all of you, to help you out. Okay, I understand that this topic is going to be little bit confusing. That's why I had recorded one video previously, so I will send it to you guys. Okay, I will upload it in OneDrive, and the link I will share it in WhatsApp. Okay, done. So I guess all of you understood this concept. Jitender, have you understood this? Understood this, Jitender? Okay, done. Snippets की little bit confusion. हाँ, I know it is little bit, ठीक है। but basically याद रखना, प्री रिक्वेस्ट में हम environment variable set कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमको एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। अब उसका काम हो गया, जब हमने एक वेरिएबल यहाँ पे सेट कर लिया, तो जो भी हमने वेरिएबल सेट किया था वहां पे, बस उसको हम बुला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट कंडीशन हम गेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल कर रहे हैं, फिर वो वेरिएबल की का नाम दे दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे उस वेरिएबल की को भी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, फिर जो वेरिएबल में स्टोर किया था उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लिया कि नेम इज इक्वल टू दिस वेरिएबल इन विच द वेरिएबल की इज स्टोर्ड, ठीक है। इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग एंड confusing, I understand, but that's why I'm going to share one video with you guys that will be helpful for you. So follow that video, but first try by yourself, then only follow that video. Okay, so are you clear with this concept? Okay, so like this. Yes, yes, exactly, correct, correct. Okay, like this you have to, what you have to do now, see what I will do। देखो मैं अपडेट रिपोजिटरी करना है, तो एक अपडेट रिपोजिटरी बॉडी पे गया, तो यहाँ पे, अरे हटाओ छोड़ो, ठीक है। बेसिकली वही पोस्ट कंडीशन में वैलिडेशन डाल रहा था एक बार, एक चीज, या फिर मैंने यहाँ डाली होगी ना। हाँ, ठीक है। यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। अ, एक बार मेरे को आप लोग को कलेक्शन रन करके दिखाना है, इसलिए जल्दी से एक रैंडम नंबर यहाँ भी जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले स्निपेट्स में सेट करेंगे वेरिएबल को, तो उसके लिए स्निपेट्स है सेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल की सपोज में दे दिया रैंडम नम, सिर्फ रैंडम नम दे दिया, ठीक है। स्पेस हटा देता हूँ, कैमल केस में रखा इसको, वेरिएबल वैल्यू दे दिया, वेरिएबल वैल्यू क्या देता हूँ, हैरी पॉटर, नो, हैरी, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर प्लस एक्स। एक्स क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो एक्स में स्टोर है, एक्स वेरिएबल में स्टोर है, तो ये मैंने दे दिया, ठीक है, डन। अब यहाँ पे बॉडी पे आया, अब मैं किसको कॉल कर लूंगा, कोई रैंडम नम जो मैंने यहाँ पे जनरेट किया है उसको मैं कॉल कर लूंगा, ठीक है। रैंडम नम, ठीक है, सेव किया मैंने, सेंड किया, 201 क्रिएटेड, जितनी बार भी करूंगा मैं, ये देखो आप, हमेशा ये देखो एक और रैंडम नम का एक और वेरिएबल बन गया, और उसमें ये रिपोर्टर 73 वो चेंज होते जाएगा, ठीक है, चेंज होते जाएगा, 201 क्रिएटेड और चेंज होते जाएगा, ठीक है। बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, अब देखना आप लोग कि मैं अब इस कलेक्शन को रन करूंगा एक बार,
ठीक है, वापस से हम ये चीज़ कर चुके हैं पहले। रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस, ये कलेक्शन रन किया मैं करूँगा, मैं डिले देता हूँ एक मेरे हजार में 1 सेकंड का। रन गिटहब यूजिंग वेरिएबल्स, ठीक है, ये देखो प्रॉपर सारे कुछ आएगा। ये देखो वैलिडेशन भी आ रहा है, दिख रहा है, ये देखो वैलिडेशन भी आ रहा है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अगर मैं ये वाला भी कलेक्शन रन करता हूँ चलो तो और अच्छे से होगा। रन कलेक्शन, 2 सेकंड का गैप देता हूँ, रन गिटहब, ठीक है, ये देखो एक बार में 201 क्रिएटेड, सब पास, बहुत बढ़िया यार। हे भगवान, ही पास फेल क्यों, अच्छा ओके। ये 404 नॉट फाउंड, क्योंकि वो बेसिकली रेपोजिटरी में थोड़ा ये सब चेंज करना पड़ेगा इसकी वजह से। ठीक है, तो बेसिकली ये देखो यहाँ पे वेरिएबल मैंने रन किया था कलेक्शन, वापस एक बार done. Like this we can run collection. So what you have to command prompt, I will tell you now. Like this you can, X 1 sec, yeah. So like this you can uh, yes, okay, like this you can run your whole collection. So this is nothing but request chaining process, okay. And how we have to do in request prompt, I will tell in my next class, okay. In sorry, in command prompt I will tell in my next class, okay. So is it clear till now, guys? Today we learned about precondition, how to set. Today first we had one quick recap of post condition, how to set post condition. Then we learned about precondition, and then we at last run the whole collection, that whole collection. And if collection is getting failed, try to solve it by yourself. Find it why it is getting failed, what mistake I had done. Okay, try to solve it by yourself. Okay, so today's assignment will be, you have to like already you have created one separate collection, and by using variables you have created that. So now you have to set post precondition also, as well as post condition in each and every request, okay. Only one time you have to just add this, obviously. If you are creating repository, then only one time you have to give precondition, not every request you have to give. Only one time you have to give, but for every request you have to give post condition. So this is the assignment that you have to do. You have to add precondition as well as post condition in respective requests, okay. So that's all for the day, guys. Do you have any doubt? No, same collection, Vartika. Okay, done. For in same collection you have to say, sir, basically prerequisite script condition is used to serve, yes, kind of not prerequisite मतलब प्री कंडीशन क्या होता है उसका हमने मतलब समझ लिया, कि 422 एरर से कैसे ओवरकम करते हैं रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन प्री कंडीशन में और भी सारी चीजें, मैंने बस इसका एग्जांपल लिया कि हम ये भी चीज प्री कंडीशन में डाल सकते हैं, ठीक है। Done. So please practice it in your home. Okay, this precondition and post condition, how to generate random number, it is also an important topic. Try to do it by yourself. I will upload one video in WhatsApp group now. Okay, and if you are finding some difficulties, please take a help from that particular video. Okay, so and let me know. Yeah, obviously, Dipanshu, please let me know if you're facing an issue. I will be there to help you out. Okay, so that's all for the day. We will continue this session tomorrow, and